Chapter 5 Footprints Without Feet. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? क्या कोई मनुष्य अपने आप को अदृश्य बना सकता है? यह कहानी एक ऐसे ही वैज्ञानिक के बारे में है जो मनुष्य को अदृश्य बनाने की एक दवा का खोज करता है। इस कहानी के जरिए हम अब पता लगाएंगे कि वह इस खोज का उपयोग अच्छे काम के लिए करता है या इसका दुरुपयोग करता है। Read and find out. How did the invisible man first become visible? Why was he wandering the streets? आगे की कहानी पढ़िए और यह पता लगाइए कि वह अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्य कैसे बना और वह व्यक्ति गलियों में भटक क्यों रहा था। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? दो लड़कों ने अचानक से एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कुछ कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान हैं। उन्होंने सोचा कि कोई इंसान इस टाइम पे लंदन के बीचों बीच नंगे पैर कर क्या रहा है और वह इंसान है तो है कहाँ। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जैसे ही वह उन पैरों के निशान को देख रहे थे, कुछ असाधारण सा हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ नए पैर के निशान ना जाने कहाँ से यहाँ आ गए। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वह लड़के इन पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने देखा ये पैरों के निशान सीढ़ियों के नीचे और गली में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर यह निशान धीरे धीरे हल्के हल्के होते जा रहे हैं और फिर अचानक से यह गायब ही हो गए। The explanation of the mystery was really simple. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. लेखक बताते हैं कि इस उलझन का सिर्फ एक सिंपल सा, एक बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन था। लड़कों ने जिन पैर के निशान को देखा था, वह पैरों के निशान एक वैज्ञानिक के थे जिसने अभी अभी कुछ ऐसी दवा खोजी है जिससे वह अपने आप को अदृश्य बना सकता है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। ग्रिफिन ने काफ़ी सारे प्रयोग के बाद प्रयोग किए सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इंसान का शरीर अदृश्य बनाया जा सकता है। आखिरकार उसने कुछ ऐसे दवा खाई जिससे उसका शरीर ग्लास की तरह अदृश्य बन गया। वह अदृश्य तो था ग्लास की तरह, पर वह ग्लास की तरह काफ़ी ठोस भी था। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Griffin एक बहुत ही दिमाग वाला
वैज्ञानिक था, पर वह एक ग्रिफिन एक लाजवाब वैज्ञानिक था, पर वह एक बहुत ही न्यायवृद्ध इंसान था। उसका मकान मालिक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वह ग्रिफिन को अपने घर से निकालना चाहता था। और जब उसने ऐसी कोशिश की तो ग्रिफिन ने इसका बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा दी। क्योंकि ग्रिफिन वहां से बिना पकड़े हुए निकलना चाहता था, तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि वह अदृश्य बन जाए। पर जैसे ही वह गली में बाहर भाग रहा था, उसका पैर कुछ कीचड़ में जा पड़े, जिसके कारण चलते चलते उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. ग्रिफिन ने बहुत आसानी से उन दो लड़कों को लंदन में चकमा दे दिया था, पर उसकी यह हरकतें किसी भी तरीके से अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अदृश्य बनने के लिए एक बहुत ही गलत समय चुना था। लंदन में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण हवा बहुत ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के ऐसे उन गलियों में नहीं घूम सकता था। इसलिए उसने यह सोचा कि वह लंदन के एक बड़ी सी दुकान में चला जाएगा ताकि उसे वहां थोड़ी गर्माहट मिले। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers, fitted himself out with warm clothes. Soon after, with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. जैसे ही दुकान बंद करने का समय आया, ग्रिफिन दुकान के अंदर जा घुसा और उसने कुछ बक्से खोलकर कुछ कपड़े निकाले और पहन लिए ताकि वह दृश्य बन सके और अपने आप को गर्म रख सके। फिर वह रेस्टोरेंट के किचन में गया, वहाँ से कुछ ठंडा मांस और कॉफ़ी पी और उसके बाद कुछ मीठा खाया और वाइन पिया, जो कि उसने ग्रोसरी स्टोर से लिया था। फिर वह एक रज़ाई के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अगली सुबह वह समय पर नहीं उठा, जिसके कारण दुकान के सहायक ने ग्रिफिन को देख लिया। ग्रिफिन ने जैसे ही उन्हें देखा, वह घबरा गया और घबराकर वह भागने लगा। सहायक उसके पीछे भागे तो ग्रिफिन ने एक एक करके अपने सारे वस्त्र उतार दिए और वह पुनः अदृश्य हो गया। लेकिन वह एक बार फिर से जनवरी की इस ठंडी हवा में कांप रहा था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drudgery Lane, the center of the theatre world. वह ठंड के कारण कांप रहा था, तो उसने सोचा कि इस बार वह एक नाटकीय कंपनी की दुकान में घुसेगा ताकि वह वहां जाकर
कुछ ऐसे कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी का इस्तेमाल कर सके ताकि वह अपने कंधों के ऊपर जो खाली जगह है उसको भर सके। ठंड से ठिठुरते हुए वह ड्रडरी लेन की तरफ बढ़ा, जहां पर नाटकीय वर्ल्ड की सारी चीजें मिलती थीं। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could found. नाटकी कंपनी की दुकान में घुसते ही उसने अपने माथे पर कुछ पट्टियां बांध ली, एक काला चश्मा पहना, एक नकली नाक लगाई और कुछ मूछें लगाकर उसने अपने आप को थोड़ा दृश्य बनाया। पर दुकानदार ने उसे देख लिया। क्योंकि ग्रिफिन भागने की कोशिश कर रहा था, भागते उसने दुकानदार को पीछे से मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसने उसके सारे पैसे लूट लिए। रीड एंड फाइंड आउट। आगे की कहानी पढ़िए और पता लगाइए। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? What curious episode occurs in the study? What other extraordinary things happen at the inn? मिसेस हॉल को वैज्ञानिक थोड़ा सनकी क्यों लगा? ऐसा कौन सा विचित्र वाकया हुआ था स्टडी में? रीड एंड फाइंड आउट। आगे की कहानी पढ़िए और पता लगाइए। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसेस हॉल को वह वैज्ञानिक सनकी क्यों लगा? What curious episode occurs in the study? क्या विचित्र वाकया अध्ययन कक्ष में घटित होता है? What other extraordinary things happen at the inn? और किस प्रकार की विचित्र असाधारण चीज़ें होटल में घटित होती हैं? Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk, and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." ग्रिफिन लंदन की भागदौड़ और भीड़ भाड़ से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने एपिंग नामक गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी और वहां के एक छोटे से होटल में 2 कमरे बुक कर दिए। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो वहां के ग्रामीणों को बहुत अजीब लगा कि ठंड के इस समय इतना असाधारण दिखने वाला व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। पर होटल के मालिक की पत्नी मिसेस हॉल ने ग्रिफिन के साथ अच्छे से बात करने की बहुत कोशिश की, पर ग्रिफिन की उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और ग्रिफिन ने उनसे कहा कि मैं एपिंग में सिर्फ और सिर्फ शांति से अपना समय व्यतीत करने के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। और उसने ये भी बोला कि मेरा चेहरा एक एक्सीडेंट में खराब हो गया था। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no check, no ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. मिसेस हॉल ने ये समझ लिया कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है और क्योंकि उसने पहले से ही पैसे जमा कर दिए थे, उन्होंने अपने आप को उसकी अजीबोगरीब हरकतें और
उसका गुस्से वाला स्वभाव सहने के लिए तैयार कर लिया था। पर क्योंकि ग्रिफिन ने जो पैसा चोरी किया था वह पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता था, इसलिए अब उसके पास कोई पैसा बचा नहीं था। इसलिए उसने मिसेस हॉल से कहा कि वह अभी कुछ ही दिन में एक चेक का इंतज़ार कर रहा है और वह उससे उनका पैसा भर देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downwards, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise, and with a proper poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Extraordinary affair. The clergyman kept seeing for the rest of the day. पर ग्रिफिन के एपिंग में आने के कुछ दिनों बाद ही एक असाधारण सा वाक्य घटित हुआ। पादरी और उनकी पत्नी ने सुबह के वक्त कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब वह अपने अध्ययन कक्ष में नीचे गए तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और चिल्लाया सरेंडर, पर वह आश्चर्यचकित रह गए कि रूम में तो कोई है ही नहीं। उन्होंने हर जगह देखा, टेबल के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर तक देखा, पर वहाँ किसी भी इंसान का कोई निशान ही नहीं था। पादरी ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और वह पूरे दिन इसी के बारे में बात करते रहे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। पर यह घटना उतनी अजीब नहीं थी जितनी कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ जो उस दिन सुबह थोड़ी देर बाद हुआ। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually, it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह बहुत जल्दी उठ गए। वो जैसे ही उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के रूम का जो दरवाज़ा है वह खुला हुआ है, क्योंकि ग्रिफिन हमेशा उसे बंद रखता था और वह किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। तो उन्हें ये एक अच्छा मौका लगा कि वह अंदर जाके यह देख सके कि वह वहाँ करता क्या है। तो जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि जो उसका बिस्तर है वह तो अच्छे से बना हुआ है, मतलब वैज्ञानिक बहुत देर का उठा हुआ है। पर उन्हें एक बहुत अजीब बात लगी। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन हमेशा जो कपड़े और बैंडेजेस पहना रहता था वह पूरे रूम में इधर उधर पड़े हुए हैं। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. पर अचानक से मिसेस हॉल को अपने कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसी के जस्ट एक पल के बाद बेडपोस्ट पे रखी हुई हैट वहाँ से अपनी जगह से हटती है और उनके चेहरे में आके घलती है। फिर अचानक से बेडरूम चेयर में जान आ जाती है और वह हवा में ऊपर उठती है और मिसेस हॉल पर हमला करती है। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड काफ़ी डर चुके थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस चेयर को रूम से बाहर फेंका और अपने पीछे रूम से निकलते हुए रूम के दरवाजे को बंद कर दिया।
Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. Mrs. Hall बस सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी, वह इतना डर चुकी थी। मिसेस हॉल को यह यकीन हो गया कि उस कमरे में कोई भूत प्रेत आत्माएं हैं और उन्हें यकीन था कि वह अनजान व्यक्ति जो कि उस रूम में रुका हुआ है, ये सब उसी के कारण हो रहा है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now? मिसेस हॉल बोलती हैं कि इस चेयर में, इस कुर्सी में मेरी माँ बड़े अच्छे से बैठती थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह चेयर मेरे ऊपर ऐसे हमला करती। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long ago before that he had no money. उन आसपास के पड़ोसियों को ये लग रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है यह टोना टोटका के कारण हो रहा है, पर यह किसी टोना टोटका के कारण हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर जैसे ही लोगों को पादरी के घर में हुई चोरी के बारे में पता लगता है, उनका वैज्ञानिक में शक और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो शक और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है जब वह अचानक से मिसेस हॉल को कुछ पैसे देता है, जबकि कुछ ही दिन पहले उसने मिसेस हॉल से कहा था कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. गांव के थानेदार को बुलाने के लिए भेज दिया था, पर थानेदार का इंतज़ार करने से पहले ही मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो कि अचानक से खाली कमरे से बाहर आ जाता है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. उन्होंने ग्रिफिन से बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे कुर्सी के साथ कर क्या रहे हो ऊपर, और अचानक से तुम एक खाली कमरे से एक लॉक बाहर कैसे निकले, और रूम तो लॉक था, तो तुम अंदर गए कैसे? The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. वैज्ञानिक हमेशा से ही गुस्से वाले स्वभाव का था। अब वह बहुत क्रोधित हो चुका था और उसने मिसेस हॉल से कहा, तुम नहीं जानती कि मैं क्या और क्यों हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अचानक से उसने अपनी सारी पट्टियाँ, उसके चश्मे और उसकी नकली नाक निकाल के फेंक दी। अगले 1 मिनट में वह अब एक बिना सर वाला इंसान बन चुका था। यह देखकर लोग काफ़ी डर गए। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head. Mr. Jaffers
थानेदार वहां पहुंचते हैं और वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं यह देख के कि वह जिस आदमी को पकड़ने आए हैं उसका तो सर ही नहीं है। पर मिस्टर जैफर्स अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना जानते हैं। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी के खिलाफ वारंट निकाला है तो चाहे उसका सर हो या ना हो, उसे अरेस्ट करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. उसके बाद एक असाधारण सी घटना घटित होती है। थानेदार उस ग्रिफिन के पीछे भागते हैं, एक ऐसे इंसान के पीछे जो कि धीरे धीरे और ज़्यादा अदृश्य बनता जा रहा है जैसे जैसे वह अपने एक एक कपड़े को निकाल के फेंक रहा है। जैसे ही वह अपनी शर्ट निकाल के फेंकता है वह पूरे तरीके से अदृश्य हो जाता है और अब थानेदार एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि जिसे वह देख ही नहीं सकता। और लोगों ने थानेदार की मदद करने की कोशिश की पर वह उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि उन्हें ग्रिफिन ने मारने की कोशिश की और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मुक्के आ कहाँ से रहे हैं। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. पर अंत में Jaffers को ग्रिफिन मार के नीचे गिरा के बेहोश कर देता है। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. सब लोग चिल्ला रहे थे, उसे पकड़ो। पर यह कहना तो आसान था पर यह करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ग्रिफिन अब पूरे तरीके से अदृश्य हो चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे पकड़े तो पकड़े कैसे। और एक बार फिर से ग्रिफिन अपने आप को आज़ाद करने में सफल हुआ। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। फर्स्ट, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट, ग्रिफिन एक न्याय विशुद्ध इंसान था। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सेकेंड, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में कितना अच्छा या कैसा समझते हैं? टॉक अबाउट इट, इस बारे में आप अपने साथियों के साथ बात कीजिए। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड? क्या आप इनविजिबल बनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की सुविधाएं और असुविधाएं का सामना आपको करना पड़ेगा? सेकेंड, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिज्म। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? What would the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? क्या हमारे आसपास ऐसी और शक्तियां हैं जो कि हम देख नहीं सकते, जैसे कि चुंबकत्व? और क्या ऐसे सामान हैं हमारे आसपास जिन्हें हम देख नहीं सकते या हम अपने आंखों से नहीं देख सकते? और अगर हम इन चीज़ों को देख पाएं तो क्या होगा? थर्ड, व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट? कीप इन माइंड दैट राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन हैव ऑफन टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन। ग्लास या पानी अदृश्य क्यों है? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप ये बताइए, क्या यह साइंटिफिकली पॉसिबल है कि कोई इंसान अदृश्य बन सके? और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी लेखक साइंटिफिक फिक्शंस लिखते हैं उनके हमेशा लॉजिक थोड़े रियलिटी से अलग होते हैं।
सजेस्टेड रीडिंग। क्योंकि आपने यह कहानी पढ़ी है, आप इसके अलावा इनसे मिलती जुलती ये कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। द इनविजिबल मैन बाय H.G. Wells, As Far as the Human Eye Can See by Isaac Asimov, It Happened Tomorrow, पाल फोंडके।